Welcome to the Pixie Tarot, guys, and this is going to be a short reading about your person's late night thoughts about you. And we will see कि उनकी feelings या current feelings आपके लिए क्या हैं. So let me just give you pile selection. First pile is going to be this Santa. Second pile is going to be this beautiful rose flower, and third pile is actually going to be this golden drum. So you can take a look at the pile number 1, pile number 2, and pile number 3. So let us begin with pile number 1. You can pause and select your piles, that is also okay, but I'm not going to wait here so long. Late night thoughts of pile number 1's person for them. Okay, the Emperor, 3 of Wands, 2 of Cups. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. Pile number 1. I'm going to use this relationship angel deck, and I'm also going to see love messages in the end, so stay tuned. Pile number 1, honeymoon. Okay, release your ex, and this just jumped out. And free yourself. Wow. Romantic feelings at the bottom of the deck. There's honeymoon, and there is release your ex and free yourself. Very resonated and very clear message. I don't think so I need to explain, but let's start with your reading. Pile number 1. So basically आपके जो person है वो रात को ये सोचते हैं, लाइक दे हैव दिस ड्रीमी लैंड वेयर दे थिंक कि ऐसा कुछ हो जाता कि आप लोग साथ में आ सकते, बिकॉज दे रियली ट्रूली फील फॉर यू, एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आपको लेके, and they want to like provide you with safety, security, and they want to protect you, and that is like coming in a very positive form. They also want to dominate you, and I don't know ये message किसके लिए है, and it's a very weird message, so you can take it how it resonates, that they want to dominate you as well, and then they know that कि वो lead करेंगे इस relationship को, and that is going to give them some passion, and that is going to give them a lot of happiness. And they also are thinking about traveling with you somewhere. हो सकता है कि abroad travel या छोटा मोटा कुछ travel जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं, and they want to get really intimate with you. That is also a message that I am getting. But ये पर्सन की लाइफ में इस मोमेंट पे उनके एक्स या जिनके भी साथ वो पहले रिलेशनशिप में थे उनका इन एंड आउट होता रहता है, एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. और अगर ये उनके साथ नहीं है तो हो सकता है कि आपके लिए आपकी लाइफ में आपके एक्स जो हैं वो आते जाते रहें, एंड दैट इज़ अ वेरी मेन मैसेज जो कि इस रीडिंग में आ रहा है, दैट बोथ ऑफ यू नीड टू रिलीज योर एक्स एंड रिलीज योर पास्ट टू मूव अहेड इन दिस रिलेशनशिप. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के लिए अवेट है आगे, लेकिन बिकॉज यू बोथ आर स्टक. अब ये आप अपने रेजोनेट कर लेना, अगर आप अपनी एक्स से बात करते हैं तो ये मैसेज आपके लिए है, नहीं तो फिर ये आपके पर्सन के लिए है जिनकी दे आर स्टिल स्टक इन द पास्ट मेमोरीज ऑफ देयर एक्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड. तो इससे निकलने की ज़रूरत है, एंड उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बहुत सही हो जाएंगी. उसके बाद एक पार्टनरशिप ब्लूम होती हुई दिख रही है, एंड दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली हेल्प बोथ ऑफ यू. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ लव एंड ओरेकल डेक to see what messages do they want to tell you. My love for you is unconditional. So they
as I told you that they are in love with you, they want to control you, dominate you and also protect you. I am choosing myself. हो सकता है कि इस योर एनर्जी हील्स मी, सो इस इंसान को पता है कि वो आपकी तरफ अभी तो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, एंड दैट इज़ मोस्टली बिकॉज दे आर स्टक विद यू, यू नो, देयर एक्स, एज आई टोल्ड यू. एंड उनको पता है कि उनको वहाँ से पीस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके पास यू नो दे फील वेरी हील्ड, दे फील दैट यू आर वेरी मैच्योर, एंड उनको ये भी पता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में हैं. सो दे नो ऑल ऑफ दिस, एंड वो उनको अभी यू नो दे वॉन्ट टू गेट ओवर विद देयर पास्ट एंड देन कम टूवर्ड्स यू, एंड दैट इज़ द मेन मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 1. And I hope you like this reading. So if you liked it, like, share and subscribe to the channel, and let's move on to pile number 2. Pile number 2, if you chose this pretty red button rose, this reading is for you. I'm going to keep it here. I'm going to remove the Santa from here. Let us see your person's late night thoughts about you. I have 3 cards, but I'm not going to take it. I'm going to shuffle the deck. Pile number 2's person's thoughts about pile number 2. Okay, 9 of Swords, 6 of Pentacles, the High Priestess, bottom of the deck, the Star. Pile number 2, I think इधर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, और अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन नहीं है तो ये 60% लोगों के लिए सेपरेशन वाली रीडिंग है. नो कॉन्टैक्ट है. अगर वो नहीं है तो आपके पर्सन जो हैं दे वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या उनकी जॉब ऐसी हो जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टैकल करने के लिए, या बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस हो. अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी बहुत इतना कुछ चल रहा है कि वो आपकी तरफ नहीं सोच पा रहे, लेकिन वो हिडन और सीक्रेटिव वे में आपको बहुत पसंद करते हैं. उसमें कोई नेगेटिव फीलिंग जो है वो मुझे नहीं दिख रही है, पाइल नंबर 2. सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू. जो लोग कमिटमेंट दे चुके हैं उनके लिए जो आपके पर्सन हैं वो उनको पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, एंड आप बहुत वेटिंग एनर्जी में. आपको पता है कि यू नो कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, और उनकी लाइफ में अगर आपको नहीं पता है कि उनकी लाइफ में अभी स्ट्रेस चल रहा है तो आप उनसे पूछ के देखिएगा, क्योंकि उनकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस चल रहा है लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं. सो कुछ हिडन चीज़ें हैं जो कि उनके काम को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, जिसकी वजह से कि वो स्ट्रेस्ड पे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं. देयर इज़ दैट एनर्जी इन दिस रीडिंग. सो पाइल नंबर 2, आई थिंक उनको कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि इफ़ देर इज़ नॉट इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप, उनको ये भी गिल्ट है कि उनको पता है कि वो आपको उतना नहीं दे पा रहे हैं टाइम जितना उनको देना चाहिए, उसके लिए गिल्ट भी है. या फिर हो सकता है कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो. सो लाइकवाइज वॉट एवर रेजोनेट्स विद यू. सो ऐसा कुछ इस रीडिंग में निकल के आ रहा है. पाइल नंबर 2, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, बट देयर इज़ अ विश, like you know they do think in the night that maybe एक टाइम आएगा जहाँ पे कि वो सारी चीज़ें आपको आके बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या स्ट्रेस है, एंड हो सकता है कि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम भी 9 मंथ्स का टाइम दिख रहा है. सो 9 मंथ्स इज़ लाइक अगस्त नेक्स्ट ईयर. सो काफ़ी ज़्यादा यू नो इस टाइम पे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी कमिटमेंट या शादी के लिए नहीं दिख रही है, बट हाँ आगे जाके डेफिनेटली 6 मंथ्स के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेंगी, और 9 मंथ्स में तो आप मान लीजिए कि कुछ ना कुछ आउटकम आपको इस कनेक्शन से आता हुआ दिख रहा है. और हो सकता है कि जो लोग सेपरेशन में हैं सेकंड चांस भी आप लोगों को मिले, और ये यूनिवर्स की तरफ से सेकंड चांस आप लोगों की लाइफ में आएगा जो लोग सेपरेटेड है, नो कांटेक्ट में है. कम्युनिकेशन तो बहुत जल्दी ही विद इन 1 मंथ जो है वो आपको हो जाएगा, लेकिन
कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई सीरियस वाला नहीं है, बस हाय हेलो टाइप का है। बट उसके बाद चीज़ें 6 to 9 मंथ्स एज आई सेड चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और हाँ, एक चीज़, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपकी रीडिंग में आ रहा है, एंड दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन. सो देर इज़ अ चांस दैट इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, you can manifest this person in your life using certain methods. What a manifestation of 555 manifestation method, you can google it and you will come to know what that is. एंड मैनिफेस्टेशन आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे. सो लेट मी सी फ्रॉम हियर. एक्सप्रेस योर लव, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड मेक द एफर्ट. सो हो सकता है कि आपके पर्सन एज आई सेड कि बिजी हों, लेकिन वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं. सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट एंड यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस. एंड आपको इस टाइम पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सपोर्ट कीजिए. और अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, सो यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. आपको बहुत जल्दी तो मैसेज नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज आपको उनसे ज़रूर मिलेगा. ये आपकी कार्ड्स में बहुत बड़ी एक गाइडेंस है. सो यू कैन एक्चुअली गो एंड एक्सप्रेस योर लव इफ़ यू आर लाइक काइंड ऑफ एंटिसिपेटिंग कि मुझे क्या करना चाहिए. आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि जिस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक इक्वल नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपको उतनी अटेंशन उस इंसान से नहीं मिल रही है, सो हो सकता है कि आपको मूव ऑन भी करना पड़े इस इंसान से. और अगर आपको ऐसा होता है तो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज़ टेक help from your friends. So you should talk to your friends and maybe they will guide you about it, what exactly you need to do with this person. Now I'm going to take certain love messages from this deck for you, pile number 2. Being fair sometimes bring us balance and more understanding. So हो सकता है कि उनको लग रहा हो, अगर आप लोग के बीच में झगड़े हैं, कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस कनेक्शन को लेके. सो हो सकता है कि वो बिजी हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड या नेग्लेक्टेड फील हो रहा हो. चैलेंजेस आर टू overcome and bring us to a stronger bond. They are not supposed to break us apart. So हो सकता है कि काम की वजह से वो बिजी हों और आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हों. So वो कह रहे हैं कि this is the time, difficult times में is going to test our relationship. It is not something that should break us. So this is a message for them जिनके relationship में मैंने कहा कि काम के लिए stress है. My love for you is unconditional. They know that they love you, but right now the situation in their life is not conducive enough. अभी ऐसी रिलेशनशिप में उनके करियर में या उनकी फैमिली लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो आपकी तरफ नहीं आ सकते. सो दैट इज़ ऑल पाइल नंबर 2. इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. Pile number 3, if you chose this golden drum, this reading is for you. I'm going to keep it here. And let's start with your reading. What are your person's feelings and late night thoughts about you? I already have 2 cards. So 3 of Cups reverse में आया है, so I'm going to take it. And there is 9 of Swords. 9 of Swords second pile में भी आया था, तो आपको अगर pile 2 देखना है या आप कंफ्यूज थे तो आप वो भी देख सकते हैं. ओके, सो हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, और ये तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन लग रही है. तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं है तो पाइल नंबर 2 सुन लीजिए या फिर पाइल नंबर 1 भी सुन सकते हैं. सो दिस इज़ कम्प्लीटली सेपरेशन, डिवोर्स, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग. एंड मैं इस रीडिंग में रियलाइजेशन देख रही हूँ दैट योर पर्सन हैज़ रियलाइज्ड योर वैल्यू एंड दे नो कि उन्होंने कितना अच्छा इंसान खो दिया है अपनी लाइफ में. दे आर स्ट्रेस्ड कि शायद अब चीज़ें जो हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ, या चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं, उनको बहुत ज़्यादा होप इस कनेक्शन से नहीं है और गलती उन्हीं की है. हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया हो, या वो किसी और के साथ थे, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और आपको पता चल गया. इस टाइप का कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है. और इससे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है एंड वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. मिसिंग एनर्जी भी है. दे थिंक दैट यू माइट फाइंड समवन एल्स
इस टाइप का उनको ख्याल भी आ रहे हैं. सो दैट इज़ द मेन रीडिंग. उनको ये भी लग रहा है कि कहीं आपको कोई और ना मिल जाए और आपकी शादी कहीं और ना हो जाए. और हो सकता है कि जब से आपका सेपरेशन या ब्रेकअप या जो भी हुआ है उसके बाद से आपने ग्लो अप किया है, जिसकी वजह से कि वो और ज़्यादा परेशान हो गए हैं एंड दे फील लाइक यू आर डूइंग क्वाइट वेल इन योर लाइफ उनके बिना. और उनको इतना ज़्यादा मतलब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. जेलस एनर्जी है और वो सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया. क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में लगे थे. दे थिंक दैट नाउ दे हैव लॉस्ट अ पर्सन जो कि बहुत इमोशनल था उनके लिए और उनके लिए काफ़ी कुछ करने को रेडी था. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पाइल जिसमें कि देर इज़ अ no contact breakup situation. So I'm not going to extend it. So keep up the good work if you have worked on your self worth, self esteem. So kudos. Like हो सकता है कि आपके पर्सन जेलस फील कर रहे हो इस चीज़ को लेके. So let me see from here. Reconciliation, and as I told you that they want to come back because they are like quite jealous of you and soulmate. Okay, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि आप सोलमेट थे उनके एंड मिसिंग एनर्जी है. रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनको आपके लिए जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं. तो आई एम गोइंग टू सी एंड वेडिंग का कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हो सकता है कि ये मैसेज मुझे आया था कि हो सकता है कि आपकी शादी कहीं और हो जाए. इस चीज़ का डर उनको सता रहा है. सो दिस इज़ लाइक क्वाइट फनी. सो एज आई सेड दे वॉन्ट टू कम बैक एंड दे वॉन्ट टू रिकनसाइल. बट हो सकता है कि आप उनको अब उतना भाव ना दे रहे हो या आपने सोच लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है. आई विल सी द गाइडेंस वॉट यू शुड डू. एंड दे ऑल्सो थिंक दैट यू आर योर देयर सोलमेट. एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा पर्सन और कितना अच्छा लव जो है वो अपनी लाइफ से वो गवा दिया. सो दैट सॉर्ट ऑफ रीडिंग इज़ देयर. आई विल सी a few messages for you. Pile number 3, it is a very short reading, so I'm not going to extend it as I said, but I will see a guidance which I didn't for the other piles. देखते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं आपको. Sorry. Okay. Maybe we have so many differences, I can't meet your standards. So हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ गए हैं, आपने इतना अच्छा ग्लो कर दिया है, ग्लो अप हो गया है आपका कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हैं. एंड हो सकता है कि अब उनको लगता हो कि अब आप उनको उतना अच्छा ना समझें और कभी भी वापस ना आए. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर ट्रस्ट. तो हो सकता है ये पर्सन आपके ऊपर चीट किया है या पहले किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे और आपका ट्रस्ट ब्रेक करके चीट करके वो किसी और के पास गए थे. तो वो आपसे सॉरी भी कह रहे हैं. इतनी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है पाइल नंबर 3 आपके पर्सन को. एंड बीइंग फेयर समटाइम्स ब्रिंग अस बैलेंस एंड मोर अंडरस्टैंडिंग. सो हो सकता है कि वो अभी भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बात मान जाएंगे एंड उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी करने वाले हैं. 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको इनसे कम्युनिकेशन आएगा अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो. अगर आप चाहते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं. बट आई एम गोइंग टू सी अ गाइडेंस. वॉट शुड पाइल नंबर 3 डू? मूव ऑन और वेट फॉर दिस पर्सन? लेट मी सी दैट. Because I think that they have cheated on you and they have broken your trust and it's not a good thing. So I don't want to say कि आप इनके पास वापस जाइए until and unless we have the guidance. So spirit guides, please tell me what pile number 3 should do. The Devil. I'm going to take 2 more cards. 7 of Cups एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इस पर्सन के सुधरने के लिए बिकॉज दे आर अगेन गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू अदर पीपल एंड एक्सप्लोर ऑप्शंस. बिकॉज ये उनकी एक एडिक्शन है, ये उनकी आदत है, इससे वो बाहर नहीं आने वाले हैं. सो पाइल नंबर 3, अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है, फ्री का टाइम है, तो आप इनके लिए वेट कर सकते हैं, इनके सुधरने का वेट कर सकते हैं. वैसे तो यहाँ पे 60 to 70% यही आया है कि आपको इनके लिए वेट नहीं करना चाहिए. आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू. एंड जब आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस और अबंडेंस आने वाली है, हो सकता है आपकी किसी और के साथ शादी हो जाए, देयर इज़
वन वेरी गुड मैच कमिंग फॉर यू, एंड देयर इज़ वेडिंग का कार्ड पहले वाले डेक के शफल करने में भी आया था और मैंने तब भी बोला था. सो देयर आर 2 वेडिंग कार्ड्स. हो सकता है कि आपके लिए कोई वेडिंग रिश्ता आए फैमिली से लेके जो कि इस पर्सन से बहुत बेटर हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर से कोई इस टाइप का इंसान आए तो वो आपके लिए मच बेटर रहेगा. दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. या हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आपके करियर के थ्रू या कैसे भी आ जाए. सो दैट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर फॉर यू. एंड अभी तो ये टाइम नहीं है ये देखने का कि यू शुड गो बैक टू दिस पर्सन. So that is the guidance pile number 3 for you. Thank you for watching. If you resonated and want to claim to this reading, like, share and subscribe to this channel. Bye bye. Take care.